Good morning, all dear student. Myself Deepika Hanwani. I am welcoming all dear students on behalf of Ideal Institute of Commerce and Genius School. Today I am taking the 12th standard class subject accountancy, the chapter number 1, Introduction of Partnership Firm. As I also took the lecture previously, 4 to 5 lecture I think conducted on that topic. If you remember, we were doing the question number 3, which was mentioned on page number 30 with the help of textbook, or I send you a PDF also of questions. The question number 8 and 9 is remaining. Today I am taking both of the question number 8 and 9 of question number 3. Got it? The question number 8 saying the interest on drawing Lata, Geeta and Praveena. 2,700 rupees of interest on drawing chargeable on Lata, 2,700 rupees, 1,200 on Geeta and Praveena 1,500. The charging interest on drawing is missed out. Means firm forget or due to by mistake they not charge the interest on drawing on their partner's drawing. So now we will have to rectify that mistake. So the rectification is, firstly you will have to charge the interest on drawing on the partners. If we are charging the interest on drawing on the partner's drawing, means the partner's account is debited. Partner का account debit हो रहा है क्योंकि partner के account से deduct होगा वो interest. So 2,700 of Lata, 1,200 of Geeta and Pravena's 1,500 rupees. So the total interest on drawing is chargeable 5,400 by the firm. Now when the firm is getting the 5,400 rupees income, then firm again redistributed it among the partners. Definitely firm को जो income है वो वापस partners को distribute होगी. firm को कोई loss या expenses होता है वो भी partners में distribute होता है. So the 5,400 rupees income generated in the firm. So the 5,400 distributed in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio question में नहीं available है, and I told you if there is not available the profit or loss sharing ratio, you will have to distribute in equal proportion. So the 5,400 equally distributed among the 3 partners, 5,400 divided by 3. So the profit of each partner is 1,800. Now see the difference. The Lata's account debited with 2,700 and credited with 1,800 क्योंकि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में. तो 2,700 तो डेबिट अमाउंट है और 1,800 क्रेडिट अमाउंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 900. एंड आई टोल्ड जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, बैलेंस एक्सीडिंग होता है, वही बैलेंस रिमेनिंग बचता है. मींस डेबिट का बैलेंस एक्सीडिंग है तो जो डिफरेंस आया है वो भी डेबिट बैलेंस होगा. सिमिलरली गीता का 1,200 डेबिट है, 1,800 क्रेडिट है. यहाँ पर क्रेडिट एक्सीडिंग है, मींस 600 जो दोनों का डिफरेंस है वो क्रेडिट होगा. और 1,500 डेबिट है प्रवीणास के अकाउंट में और 1,800 क्रेडिट है प्रवीणास के अकाउंट में. मींस दोनों का डिफरेंस 300. यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है. सो द रेक्टिफाइड एंट्री या करेक्ट एंट्री, लतास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो डेबिट होगा. गीतास 900 के अमाउंट से, गीतास करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 600 के अमाउंट से, और प्रवीणास का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 300 के अमाउंट से. गॉट इट? नाउ सी द 9th नंबर क्वेश्चन. द मुकेश, धवल एंड विनोद टीम पार्टनर है. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन और अवेलेबल इन योर क्वेश्चन. प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 90,000 फर्म का प्रॉफिट है. धवल और विनोद एश्योर्ड मुकेश फॉर मिनिमम प्रॉफिट 35,000. धवल और जो विनोद है उसने मुकेश को अश्योर्ड कर दिया है कि आपको फर्म से 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, मींस यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स इक्वली. आपको उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कैसे होगा. 90,000 रुपीज प्रॉफिट है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस मुकेश, धवल, विनोद तीनों पार्टनर्स को 30,000 रुपीज प्रॉफिट मिल जाएगा.
पर मुकेश जो है उसे हमने 35,000 की एश्योरेंस दी है। मींस जो 5,000 रिमेनिंग है वो हमें उसे देने तो पड़ेंगे, क्योंकि वो मिनिमम प्रॉफिट से है, उसे 35 से कम प्रॉफिट हम नहीं दे सकते। तो अब जो 5,000 रिमेनिंग प्रॉफिट है उसकी एश्योरेंस देने वाले धवल और विनोद दोनों ही हैं। तो मींस इसे जो 5,000 दिए जाएंगे वो धवल और विनोद से दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कौन से रेशियो में धवल और विनोद देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, और कोई भी हमको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो किस रेशियो में बियर करते हैं इस तरीके का एश्योरेंस अमाउंट। तो इक्वल ही है, तो इक्वल ही बियर करेंगे। मींस 5,000 का दोनों इक्वल, मींस 2,500 धवल इससे देंगे मुकेश को और 2,500 विनोद देंगे। सो 30,000 में यहाँ एडअप किया गया है 2,500 बाय धवल एंड 2,500 बाय विनोद, तो टोटल 35,000 हो गया बेटा। नाउ द प्रॉफिट ऑफ 30,000 जिसमें से 2,500 धवल गिवन टू द मुकेश डिडक्ट हो जाएगा एंड विनोद के अकाउंट में से भी 2,500 गिवन टू द मुकेश डिडक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ मुकेश 35,000, उससे तो 35,000 ही देना था एश्योर्ड अमाउंट। धवल्स 27,500 एंड विनोद 27,500 रुपीज। ओके, थैंक यू। Indian Institute of Commerce and Genius School. Today I am taking the 12th standard class of subject accountancy, the chapter number 1, introduction of partnership firm. As I also took the lecture previously, 4 to 5 lecture I think conducted on that topic. If you remember, we were doing the question number 3 which was mentioned on page number 30 with the help of textbook, or I send you a PDF also of questions. The question number 8 and 9 is remaining. Today I am taking both of the question number 8 and 9 of question number 3. Got it? The question number 8 saying the interest on drawing Lata, Geeta and Praveena, 2,700 rupees of interest on drawing chargeable on Lata, 2,700 rupees, 1,200 on Geeta and Praveena 1,500. The charging interest on drawing is missed out. Means firm forget or due to by mistake they not charge the interest on drawing on their partner's drawing. So now we will have to rectify that mistake. So the rectification is, firstly you will have to charge the interest on drawing on the partners. If we are charging the interest on drawing on the partners drawing, means the partners account is debited. partner का account debit हो रहा है क्योंकि partner के account से deduct होगा वो interest. So 2,700 of Lata, 1,200 of Geeta and Praveena 1,500 rupees. So the total interest on drawing is chargeable 5,400 by the firm. Now when the firm is getting the 5,400 rupees income, then firm again redistributed it among the partners. Definitely firm को जो income है वो वापस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी। फर्म को कोई लॉस या एक्सपेंसेस होता है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो द 5,400 rupees income generated in the firm. So the 5,400 distributed in their profit sharing ratio. Profit sharing ratio क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल है, and I told you if there is not available the profit or loss sharing ratio, you will have to distribute in equal proportion. So the 5,400 equally distributed among the 3 partners, 5,400 divided by 3. So the profit of each partner is 1,800. Now see the difference. The Lata's account debited with 2,700 and credited with 1,800, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो 2,700 तो डेबिट अमाउंट है और 1,800 क्रेडिट अमाउंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 900। एंड आई टोल्ड जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, बैलेंस एक्सीडिंग होता है, वही बैलेंस रिमेनिंग बचता है। मींस डेबिट का बैलेंस एक्सीडिंग है तो जो डिफरेंस आया है वो भी डेबिट बैलेंस होगा। सिमिलरली गीता का 1,200 डेबिट है, 1,800 क्रेडिट है। यहाँ पर क्रेडिट एक्सीडिंग है, मींस 600 जो दोनों
से वो क्रेडिट होगा। और 1500 डेबिट है प्रवीणास के अकाउंट में और 1800 क्रेडिट है प्रवीणास के अकाउंट में, मींस दोनों का डिफरेंस 300, यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है। सो द रेक्टिफाइड एंट्री या करेक्ट एंट्री, लतास कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो डेबिट होगा, गीतास 900 के अमाउंट से, गीतास करंट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 600 के अमाउंट से, और प्रवीणास का कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 300 के अमाउंट से। गॉट इट? नाउ सी द 9th नंबर क्वेश्चन। द मुकेश, धवल एंड विनोद टीम पार्टनर है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन और अवेलेबल इन योर क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 90,000 फर्म का प्रॉफिट है। धवल और विनोद एश्योर्ड मुकेश फॉर मिनिमम प्रॉफिट 35,000। धवल और जो विनोद है उसने मुकेश को अश्योर्ड कर दिया है कि आपको फर्म से 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है, मींस यू विल हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर्स इक्वली। आपको उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कैसे होगा। 90,000 रुपीज प्रॉफिट है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस मुकेश, धवल, विनोद तीनों पार्टनर्स को 30,000 रुपीज प्रॉफिट मिल जाएगा। पर मुकेश जो है उसे हमने 35,000 की एश्योरेंस दी है, मींस जो 5,000 रिमेनिंग है वो हमें उसे देने तो पड़ेंगे क्योंकि वो मिनिमम प्रॉफिट से है, उसे 35 से कम प्रॉफिट हम नहीं दे सकते। तो अब जो 5,000 रिमेनिंग प्रॉफिट है उसकी एश्योरेंस देने वाले धवल और विनोद दोनों ही हैं। तो मींस इसे जो 5,000 दिए जाएंगे वो धवल और विनोद से दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कौन से रेशियो में धवल और विनोद देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में और कोई भी हमको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो किस रेशियो में बियर करते हैं इस तरीके का एश्योरेंस अमाउंट। तो इक्वल ही है तो इक्वल ही बियर करेंगे, मींस 5,000 का दोनों इक्वल, मींस 2,500 धवल इसे देंगे मुकेश को और 2,500 विनोद देंगे। सो 30,000 में यहाँ एडअप किया गया है 2,500 बाय धवल एंड 2,500 बाय विनोद, तो टोटल 35,000 हो गया बेटा। नाउ द प्रॉफिट ऑफ 30,000 जिसमें से 2,500 धवल गिवन टू द मुकेश डिडक्ट हो जाएगा एंड विनोद के अकाउंट में से भी 2,500 गिवन टू द मुकेश डिडक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ मुकेश 35,000, उससे तो 35,000 ही देना था एश्योर्ड अमाउंट। धवल 27,500 एंड विनोद 27,500 रुपीज। ओके, थैंक यू।